Hello students, today we are going to study about compound interest, chapter number 8, comparing quantities, class at mathematics. So we know about interest. What is interest? First of all, what is interest? Interest is the extra money paid by institution like bank or post offices on money deposited with them. Interest is also paid by people when they borrow money, and we already know about simple interest. So simple interest, first of all, we know, we have studied in previous class क्या होता है simple interest. Simple interest, we know how to calculate principal into rate into time divided by 100. And we also studied what is amount. Amount equals to principal plus simple interest. So we have some money in the bank, then every year bank is given some interest to us which is added to our principal. The interest is not the same each year, it increase or decrease. Normally the interest paid or charge is never simple. इंटरेस्ट कभी भी सिंपल नहीं होता. अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है मगर सिंपल नहीं होता है. द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. मतलब इस इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट मिलता है. तो दैट इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अब उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी कंपाउंड इंटरेस्ट and how we can calculate compound interest. What is the formula for compound interest? How will we find compound interest and amount? So let's see all this. So first of all, let's compare simple interest and compound interest. Suppose let's see what is the difference between simple interest और compound interest में क्या difference है. सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं. Now let us differentiate between simple interest and compound interest first. So let us take an example. Let principal be 1 lakh rupees, ones, tens, 100,000, 10,000 lakh. This is 1 lakh rupees principal, and rate let the rate be 10% per annum, and time, number of years, n stand for number of years, 3 years. So let's find out simple interest first. What is simple interest? Simple interest we know very well. P into R into T by 100. Principal is 1 lakh. Ones, tens, 100,000, 10,000 lakh. Rate is 10 into 3 times by 100. So we can directly calculate simple interest. हम directly calculate कर सकते हैं, and we can find out what is simple interest. 10 is a 30, and 30 into 1, 2, 3. So simple interest is 30,000, and amount we can find. Amount equals to principal plus simple interest. Principal is 1 lakh. 1 lakh is principal. Ones, tens, 100,000, 10,000 lakh plus simple interest 30,000. So we got 1 lakh and 30,000. 1 tens, 100,000, 10,000 lakh. 1 lakh 30,000 amount. This is the amount. Now, what is the difference between the simple interest and compound interest? So let's find compound interest by using the formula of simple interest only. Simple interest का formula use करके ही हम compound interest निकाल लेते हैं. So first of all, because what is compound interest? First of all, you must know the interest is calculated on the amount of the previous year. अब वन बाय वन ईयर का लेंगे. ये हम एनुअली मान रहे हैं. देर आर सो मेनी टर्म्स. एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली होता है. अभी हम एनुअली से निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. सो लेट्स फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ओनली. नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज रिमेन सेम. ये हमने 3 ईयर्स लिया है, तो फर्स्ट ईयर के लिए लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा फर्स्ट ईयर का. प्रिंसिपल इज 1 lakh ओनली. वंस, टेंस, 100,000, 10,000 lakh into rate is 10 और time is 1 year के लिए लेना है फर्स्ट. 1 year by 100. तो 2 zeros 2 0 कट. देन क्या हुआ? 10 into 1000, 10,000. सो हमारे पास आ गया फर्स्ट ईयर का 10,000. तो अब हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा. बिकॉज व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर. ये
फर्स्ट ईयर का आपका प्रिंसिपल था 1 लाख, अब सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट कितना हो गया 1 लाख प्लस 1/10, 10,000 लाख प्लस 10,000। अब आपका जो नया प्रिंसिपल बन गया है वो बन गया है 1,10,000। नाउ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अभी सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। So simple interest for second year, simple interest P, principal is 1,10,000, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट हमारी वही है सेम 10 और टाइम हमारा अब सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे तो वापस 1 आएगा बाय 100 एंड लेट्स कट एंड सो व्हाट विल गेट 11,000 means 11,000. This is simple interest for second year. So what will be the amount for third year? अब थर्ड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर का अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर का 1,10,000 एंड 11,000. So what will get 1,10,000 plus 11,000 means 1,21,000. This is the amount for third year. Now let's find this is principal amount, not principal. This is principal for third year. Now let's find simple interest for third year. Simple interest क्या होगा, principal 121,000 into rate, rate वही रहेगी 10 and time is also 1 by 100. So if को simplify करते हैं तो what result will get 0 cut and what will get 121,000. 12,100 is the simple interest for third year. Therefore amount आफ्टर 3 years, 3 years के बाद अमाउंट क्या हो गया 121,000 और ये हुआ हमारा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का 121,000 प्लस 12,100. अब इनको ऐड कर देते हैं. सो व्हाट रिजल्ट विल गेट, सो विल गेट 1,33,100. नाउ यू कैन कंपेयर. This is the amount after 3 years and this is the amount after 3 years. 1,30,000 and here 1,33,100. So what is the difference? What is the difference? Difference कितना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट में? डिफरेंस हो गया 3,100. So this much more amount will get in case of compound interest. So compound interest means interest is also charged on the interest. interest के ऊपर भी interest लग रहा है. यहाँ देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में सेम था. अगर दोनों के लिए अगर 1 year के लिए निकालते तो दोनों सेम आता 10,000. बट दिस 10,000 is added to the प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो न्यू प्रिंसिपल ये हो गया. तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा था उसके ऊपर हमें क्या मिलने लग गया, अगेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द इंटरेस्ट. सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वी कैन डेड्यूस द फॉर्मूला फ्रॉम दिस. इससे हम एक फॉर्मूले बना सकते हैं और दैट फॉर्मूला आल्सो यू कैन प्रूव. सो फॉर्मूला इज अमाउंट इक्वल्स टू P into 1 plus R by 100 raised to the power n. This is the formula for finding amount. ये फॉर्मूला हम डेड्यूस कर सकते हैं इसी से. अगर हम इसके अंदर P, R और N अगर सॉल्व नहीं करते हैं और P R N के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर N. और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना है. अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर N माइनस P. और P कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 1 प्लस R by 100 raised to the power n minus 1. ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R by 100 raised to power n minus 1. Now these are the two formulas just now we studied. Amount equals to P into 1 plus R by 100 raised to the power n and compound interest amount minus principal. Now rate compounded. So there are rates compounded. First one annually, ANNUA, annually. Second one half yearly,
half yearly or semi annually also we can see, half yearly or semi annually. Semi annually. And the third one is rate compounded quarterly. Quarterly. So what is this? See, just now we have seen the formula. This is formula for annually. P into 1 plus R by 100 raised to the power n minus 1. N stand for number of years. ये annually का है. Means once in a year, एक साल में 1 year के अंदर एक बार इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जाके ऐड हो जाता है. हाफ ईयरली में 1 year में 2 times, 1 year में 2 times. पहले 6 month में होगा, 6 monthly बोलते हैं इसको. पहले 6 month में जो इंटरेस्ट मिला वो हो गया 8 जाके प्रिंसिपल में. और क्वार्टरली में इन एवरी 3 month, हर 3 month में क्या हो रहा है, जो आपका अमाउंट आ रहा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है. तो एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली. एंड व्हाट आर द changes we have to made while doing half yearly or quarterly? For annually it remains same. For annually principal rate becomes R only, and number of years, conversion periods, number of years will remain same, and means number of years also remains same. Remains same. Rate and number of years remain same. In case of half yearly में ऐसा नहीं है. When compounded half yearly, rate becomes, अब आपकी rate हो जाएगी half, because in a year there are 2 6 month, 2 सेमी एनुअली के अंदर 1 year में 2 6 month होते हैं. तो रेट हो जाएगी हमारी R/2. और कन्वर्शन पीरियड हो जाएंगे 1 year में. कन्वर्शन पीरियड, इट इज कॉल्ड कन्वर्शन पीरियड. और कन्वर्शन पीरियड हो जाएंगे हमारे 2, 1 year में हो जाएंगे 2. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय n इंटू 2. अगर 2 years है तो कन्वर्शन पीरियड हो जाएंगे 2 2 ज़ा 4, बिकॉज 2 years में कितने 6 month होते हैं, 4 6 month होते हैं. नाउ सेम फॉर क्वार्टरली. इन केस ऑफ क्वार्टरली वी नो देर आर 4 quarters in a year. There are 4 quarters in a year, 3 years, 3 month, 3 month, 3 month, and 3 month. Means 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12. Quarterly. And case of quarterly, rate becomes 1/4, means R/4. And conversion periods becomes 4 times. और conversion period हो जाएंगे 4 times. Means 4 into n. n हो जाएगा. मीन्स अगर आपको 1 year का निकालना है तो 1 year का निकालना है तो रेट को हमें 4 से डिवाइड करना है. और कन्वर्शन पीरियड हो जाएंगे 1 year में कितने 3 month होते हैं, 1 year में 4 3 month होते हैं. तो 4 into n, 4 into 1 4 हो जाएगा. एंड वी नो दैट, आपको ये नहीं मालूम होगा बट आई एम टेलिंग यू दैट एवरी, आप जब एफडी करते हैं बैंक के अंदर तो सारी बैंक्स हमको एफडी क्वार्टरली मोड पे ही इंटरेस्ट पे करती है. और सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्वार्टरली मोड पे होता है, हाफ ईयरली नहीं होता है, एनुअली में भी नहीं होता है. तो हमको जो एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो क्वार्टरली मोड पे हमें हर 3 month में हमारा जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है. तो अगली बार हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है. और एनुअली मोड पे हमको सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर वंस इन ईयर, एक साल में एक बार सेविंग बैंक अकाउंट, एज सेविंग बैंक अकाउंट, अगर हमारा सेविंग बैंक के अगर अकाउंट है और हमने अगर एफडी नहीं करा रखी उसके ऊपर, तो सेविंग बैंक के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, 1 year में 1 time मिलता है, या 6 month में भी मिलता है कई बार हमें. तो और हाफ ईयरली मोड पे नहीं मिलता है. हाफ ईयरली मोड ओनली फॉर, अगर हमने सिर्फ यहीं पे पढ़ रहे हैं इसी बुक के अंदर, कि हाफ ईयरली मोड पे ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, बैंक वगैरह में नहीं भी होता है. बट हमको मेन जो पढ़ने हैं एनुअली और हाफ ईयरली पढ़ने, इस बुक के अंदर जो सारे क्वेश्चंस करने वो एनुअली और हाफ ईयरली मोड पे ही करने हैं. सो the formula is clear to all of you. Amount equals to P into 1 plus R/100 raised to the power n. और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल डायरेक्टली माइनस कर दो. और रेट आल्सो कंपाउंड है एनुअली, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली. सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस कंपाउंड इंटरेस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.